तो करें मंगलाचरण आ गया। हाँ जी, कर दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओह अच्छा, अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। मैं शेयर कर दूं? प्लीज प्लीज। यार खाली मंगलाचरण पढ़ लो, आज कुछ शेयर करना है, आज को ऐसा नहीं चले, खाली मंगलाचरण पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा आपको वैसे तो। ठीक है, ठीक है जी, ठीक हाँ है। जी प्लीज। मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके सर, ओके थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहागना रघुनाथविदं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहागना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसं गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आने फोन करता हूँ उनको। प्रभु ज्वाइन कर रहा है अभी, एक सेकंड। किसी के प्रश्न हो तो याद रखिएगा, तैयार रखिएगा प्रश्न, अपना प्रश्न उत्तर कह दिए। लेट्स बी रेडी। When there are 10 incarnations of God, I only Krishna Pala.
शुभोदय। ये मीरा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मीरा माता जी ने प्रश्न पूछा है इसमें कि उनका आवाज थोड़ा बराबर नहीं है। When there are 10 incarnation of God, why only Krishnarapana? When there is n number of word, why only Krishna? हाँ, कृष्णर्पणा है ना, मैं समझा कृष्णर्पणा। Why we tell only Krishnarpana? Why you काय नहीं कृष्णर्पणा refer only to Krishna? Why not for Rama? Okay, very nice question, Meera Mataji. See, so we have to go to, so we have to go to scriptures. Okay, so first of all, we have to understand who is Bhagwan. We call Bhagwan. The Bhagwan means what? Bhag means Aishwarya or opulences, and Van means one who carries that opulence. So Parashar Muni have given the explanation about who is Bhagwan. So one who have this opulences, 6 opulences in full, he can be called as Bhagwan. So what are the 6 opulences? So ones who have all the knowledge, all the wealth, all the beauty, all the strength, all the renouncement, and all fame. So if somebody is having all these 6 opulences in full, he can be called as Bhagwan. Okay. So we can compare. And we also understood during the course of various lectures that there is a difference between Bhagwan and Devata. Good morning, Prabhuji. Sorry to interrupt. I would like to note down these wonderful definitions. So, is there any way you can repeat these 6 opulences, please? Or I will give in share in the chat group. No issues. Thank you. Okay, so you don't need to write it again, and I will share. Okay. Thank you. Okay. So one who carries all these 6 opulences in full, he can be called as Bhagwan. Okay. Now we have to understand who are Devi Devtas. Okay. So we often hear there are 33 crores Bhagwans, 33 crores Devta, and sometimes we'll say 33 crore Bhagwan. So there are nowhere, the scripture is written there are 33,000 Bhagwans. They are Devi Devtas, basically assistants. I mean, just like for running this country, we have so many ministers. I mean, from prime minister, there is a central government, then there is a local government, then we have Panchayati Raj. On the Panchayat level, every village have a Pradhan, Gram Pradhan. Then we have a Panch, five people are appointed to assist that Gram Pradhan. And then on top of that, there is a BDO, a block level, block development officer. Then we have a block head who is governing so many, villages of that particular block. And if we come to metropolitan cities, we have municipal councils. Then we have different municipal councillors. Even though we have MLA, but still in MLA there are so many municipal councillors. So if you see, there are more than 30 or 50, or we can say India have lakhs of villages. So in terms of that, we have lakhs of Bhagwan in India itself on village level. Who are they? The Sarpanch, the Mukhiya, the Pradhan. Okay. So we have to understand that Devi Devatas are there to assist. So Pradhan in itself, or the Mukhiya, or the Sarpanch of a village itself don't have any power as such. Okay. He don't have his own power. He gets the power from the local MLA. Okay. The MLA as such don't have any power of his own. He's getting the power from the central government. The central government itself cannot do anything on its own. All the power is with the prime minister. I mean, don't go in the context, we have Supreme Court and all. Don't say, I mean, just for a better understanding, I'm saying. So similarly,
Similarly, Devi Devatas are there to assist the Lord, and they have some powers which they are getting for the supreme powers. So they are not the supreme; they are simply assistants. So in Bhagavatam, at the start of the Bhagavatam itself, when the rishis are describing various avatars of the Lord, they are saying Eta Chamsa Kala Pumsan Krishnastu Bhagavan Swayam Indriyari Vyakulam Loke Mradanti Yuge Yuge. That Krishna is the Swayam Bhagavan, and the rest of the others are simply Kalai, yeah, their expansion. So Lord is only one, and then rest of them are their expansion. Now coming to so Lord have it's so now we have to understand that Lord not only takes birth in this human body, he takes birth in or avatar in all the species of life. He takes avatar as a pig, he takes avatar as a cockroach, whatever species of life you can see, Lord takes avatar in that body as well, apart from taking avatar in human body, because he's father of everyone. So you have to treat everyone equally. So Bhagavan, till this it's clear, Mataji. Prabhuji, I got my doubt cleared by you in the previous sessions between Yes. Devata and gods. But now Yeah. my doubt is now Rama is also God only. His incarnation in Treta Yuga. Why we are not doing our samarpana to Rama? Now why only to Krishna? Okay, why Devata we are doing correct, correct. yeah. So This Lord, okay, only, okay, wait, this only wait, wait. the explained in previous sessions regarding Devatas and God. What is the difference? All other Okay, subjects okay, assistance. He's okay, the okay, main. When okay, Rama and both are his incarnations and they are equally worshipped, why only we do the Samarpana to Krishna only? Why you are not doing Ramarpana or Parashuramarpana? Like okay, very nice. Now understood that as well. So your question is basically why we do only to Krishna and why not to others. So we have to understand there is no difference between Rama, Krishna, and Parashurama and Narasimha. Okay, so it's the same person who who have taken various avatars or various expansions or various roles roles in order to set up the dharma. So, say for example, you're a housewife or I mean previously you have been a housewife or or you we are going to some office for work also, Mataji. Just wanted to check if you don't mind. Okay, no problem. So, say for example, you're the Prime Minister of India. Okay, the President of India. So, President of India is a president. Okay, so when he is he is a president for people in general. But the same president, when he goes home, whether he will be always in that mood, I mean, he will be always in that attire. Say, for example, I mean, right, when somebody is in president's office, he have to be very formal in dealings. He cannot be, he will be very, gentle, polite, and all. But when the same person goes to the house, whether his husband will call him as president, No. no, he will no, not call her as a president because he have a certain kind of relationship with her. Whether the children will call her as a president, ma'am, have come. Let we all, I mean, let us all become very formal. Whether the children will do like that? No, because he have a different relationship. Whether the president's, mother, she will treat her as a president. That now president have come. Now I don't have to tell her anything. Or she has on big No, post. No, she at will scold. home you are normal person. Yeah, and they will scold. They will scold also. The
Husband, if they have any argument, they will fight among themselves. The children will Yeah. shout at the parents, and the mother will tell that you don't know anything. You have become president. Even also after that also you don't know anything. Okay, this kind of relationship will have. So the same president have different relationship with all these different different set of people. So Mira Mataji try to understand whether the president have changed, or Yes. he is dealing with different people differently according to their relationship. Different people differently. The person is the same, correct? Yeah. Similarly, similarly, Lord also takes different avatars to deal with different kind of people who have different set of modes. Okay, so Lord understands, or we have to understand that is always a variety. Okay, so we can have relationship with Lord in various modes. So the different ways which we can have relationship is Vatsalya Bhav, Madhurya Bhav, Dasya Bhav, Madhurya, Vatsalya, Dasya, Sant. The four bhavas. Okay, we can, and parental affection. So we can have relationship with the Lord in a servitor mode. Just like Hanumanji is having. So Hanumanji cannot come and sit on the Lord's. He cannot put his hand on Lord's shoulder because he's a servant. He will be doing everything in a servitor mode. Now Sakyabha, in Sakyabha, Arjuna is there. So Arjuna can put his hand on Krishna. He can make fun of him. Okay, and Krishna will not get offended because that is the relationship we have. And Nandani Yashoda, Nandani Yashoda, they can treat him like a son. So when in Damodar pastime, when Lord was bounded by the ropes with that grinding mortar, then Balramji was not there. So Balramji came, and he saw Krishna is bounded. He said, Krishna told, see what have happened to me. You're not here. Mother have tied me. And no, he didn't tell mother have tied me. He just saw that Krishna is bound in the rope, and then he got angry. I mean, they were just small boys acting like a small boy, and then he shouted, he tried to, who did this? How dare you do this? I will, मैं नष्ट कर दूंगा, मैं भ्रष्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा. He started to blabber all kind of things. I will do this, I will do that, and all. Then Mother Yashoda heard all these things happening. Then she came. Then he simply asked, why you're shouting? Then Balram said, I just want to understand who bounded Krishna with the ropes. You don't know. Who is he? He is Supreme Personality of Godhead himself. He is the creator, he is the maintainer, he is destroyed. Then Balram told, then mother told, okay, if he is the Supreme Personality of Godhead, then who are you? Then he told that, Balram told, I am Sankarshan. Because of my power, all these universes are floating in the air. I'm this, I'm so much powerful and all. Then mother took, one of the sticks, and she told, I think all the Bhagwans have taken birth at my place only. Let me take out the Bhagwan out from you. And they took the stick. She took the stick and ran behind Balram, and Balram ran away. So can you imagine? You're doing something this with Bhagwan. Bhagwan is there, and you're taking the stick and trying to discipline the Lord. I mean, for others, contemporary people, there is no conception like that. Have you ever read this kind of dealings with the Supreme Lord anywhere in any kind of so-called contemporary religions? If you hear, never ever you hear, because Lord is shown in a way that Lord is kind of a principle. Either he's there to punish you, or he's there to forgive you. But you cannot have any kind of relationship with him. You cannot have relationship of friendship with him, or you cannot have relationship of servitorship with him, and even conjugal love. Okay, so another relationship we can have with the Lord is conjugal love, the relationship of husband and wife. So that also we can have with the Lord. So for different set of people, Lord takes different set of avatars or form, just like a actor. So same Amitabh Bachchan, he will act like a coolie. He will act like a coolie in movie Coolie. He will act like a Sahanshah in the movie where he will have heavy costume. The same
same Amitabh will act like a Jay and Viru and all in Sholay. But still, even though he's having so many roles acting, but at the end of the day, he have his own identity as well. Correct? Is not when he's Shenja, he's always in Shenja mood. Once he comes out the stage, also he will carry the 60 kg load on himself. So you have a different, he's a different set of persona as well. Similarly, Lord Krishna is this. I mean, the Lord can, the Supreme Lord or uh, the Supreme Creator, maintainer and destroyed is denoted by various names. But Krishna, the name itself is meaning. It means that uh, who attracts everyone, all attractive. So Krishna is the supreme. Now what we do is we try to differentiate the Supreme Lord uh, with it being a human being or something like that. No, the Supreme Lord itself, his name itself is Krishna because he's all attractive. And the same Krishna, just like a same actor, he performs various roles. Various roles. You know, we denote him with various names. So there are some people who will like Amitabh's getaway Sansha. Okay, somebody will like him in Diwar, somebody will like him in Sholay. But still, even though you revere him as a person who's Sansha or who is who is acting in Diwar or who is acting in Sholay, but he himself has his personal persona, and that is what Krishna is all about. So Amitabh and his various roles you can understand. So here Krishna and his various avatars. So, but in the material world, you cannot carry the different avatars at the same time. But in the spiritual world, you can get attracted to Krishna in various ways. Somebody is attracted to Ram. So even if he says, okay, Rama Arpanamastu, so that means it is going to Krishna himself. So Rama and Krishna are not different. Or if say Narasimha, Narasimha and Rama and Krishna are not different because they are only the expansion of the Lord himself. Then if we say, Vishnu Tattvas don't have any difference. So if you are revering or if you are, if somebody is worshipping Vishnu, so he will also go to spiritual world. But in spiritual world, he will go to Vaikuntha, where Vishnu is residing. If somebody is revering Rama, so they will go to Saket Loka, where the Lord Ram is there with his Parshads. And they will do service to the Supreme Lord in form of Lord Rama. If somebody is doing worship of or he is devoted to Narasimha, then he will go to Narasimha Loka, where Lord Narasimha is there, and then they have their relationship with them. But for all of us Gaudiya Vaishnavas, since we are revering or we are trying to go to Goloka, which is a supreme, wherein the Lord is in very informal way. Can you imagine? Somebody? I mean, for Vishnu, can you imagine if Vishnu is standing there and somebody is going and sitting on his sitting on his shoulder? Can that happen? No, sir. Meera Mataji? Huh? No. Cannot happen. Okay, you have to only be in the servitor bhava. You can go and you can revere, you can do pranams, you can very formally you can stand and ask your queries. But when same Vishnu goes to his home, all these cowherd boys, they will sit on his shoulder. Okay, they will do vessel fighting with him. They will defeat him, and they will even give bad words or cuss words to him or shout at him. Okay, but so that is most Krishna is the most personal form. Just like Prabhupada was given explanation that Winston Churchill was I think English premier, correct? Winston Churchill. Winston Churchill, president, na? The president. Yeah. president. जी ब्रिटिश का ब्रिटेन का प्राइम British मिनिस्टर थे वो So he was the most yeah, correct. Prime Minister. Correct. Prime Minister. Okay. So he was so much powerful. Okay, he was so much powerful. So once what happened, some of his colleagues or some of his, he was a very strict prime minister with all the demeanor he have having, all the control he was having. So once what happened, his group of ministers, they went to his home. Okay, and then they were told to wait because the prime minister is busy. So the time was passing, and he was, I mean, he have to come, but he was told not. I mean, say for example, the schedule was that they were going to meet at 9.
but 9 a.m. also passed away, but he didn't turn up. So one of the minister thought, okay, let me go and see what is happening. So he went inside the house, and what he saw, the Prime Minister of England, who was so much powerful, I mean, because I mean, most of the world was captivated or captured by them, and everybody was being ruled by them. The most powerful person, he was walking like a cat. Okay, you know how the cat will walk, on the four, and if we have to walk, we have to walk on the, we have to use your hand and elbow both. So this prime minister was the most powerful person. One small boy, one 5-year-old small boy was sitting on his back, and he was beating him with a stick, and he was telling, walk in front, go in front, move right, move left. So can you imagine, the most powerful person is being ruled by that 5-year-old boy, small kid, and he's beating and making that most powerful person walk like a cat. Is it possible? Only with his grandson or something. Yes. So that small 5-year-old boy was none other than the grandson. Okay. But so why it happened? How it happened? Because of love and affection. Okay. So when love and affection is there, it can be ruled by anyone. Similarly, the devotees of Lord revere the Lord in various moods and bhavas, and Lord reciprocates with them accordingly. Okay, so that doesn't mean this Lord is bigger than them, or this Lord is better than them. So because our mode is that we revere or we do service to the Supreme Lord Krishna, that's why we don't disrespect Rama or anyone. We understand, okay, whoever has that mood, they will go to their abode. Okay. So say for example, there are CBSE board, ICSE board, and state board, and then students are studying in them. So when they come to 10th standard, when they pass the exam, what they will call themselves? That they have passed the exam. We say only, okay, we have passed 10th exam. We don't say I passed ICC exam. We say we passed 10th exam, regardless which board we were. Similarly, since they are studying in different boards, they will study different books. All of them will not have same books. Similarly, who is worshipping Krishna will worship in the mood of whatever bhava he have. Who is worshipping Rama, they will worship in their specific way. So since our parampara is to worship the Lord in a mood of servitorship, or not in servitorship, but to serve the Lord Krishna. That's why we revere or worship Krishna. And if somebody is worshipping Rama, it doesn't mean that he's not worshipping Krishna. He's also worshipping Krishna as well. And vice versa is true. Okay. Yes. Thank you. धन्यवाद. क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ आपको? हाँ जी. Well, Prabhu, what about Shiva Bhagwan of this? Yeah. So this as I told previously, that Shiva, Ganesh, Durga, Devi, and all these, all of them are Devi Devatas. Okay, just like Prime Minister, and there are set of ministers, and all these are positions. Ganesha is not an individual; it's a position, just like Indra. So Indra is not an individual. No, but Okay. Shiva Bhagwan, वो तो भगवान है ना? No, Shiva is not Bhagwan. He is. He comes under Devata category only. Shiva and Brahma. अच्छा. Yeah, Shiva and Brahma or Devata only. Okay. Prabhuji, I have a question. Yeah. Prabhuji, Tell me. whenever we do any sort of puja rituals, in many pujas, it is there that first we do puja of Ganesh Bhagwan ji. Yes. So Ganesh, again I'm telling, Ganesh is not Bhagwan. Ganesh is Devata. Okay, so he is a presiding deity, deity of for taking out any obstacles. Okay, so he's a Devata. He's not Bhagwan. Just like Mukhyamantri. So Mukhyamantri is not all the controller. Mukhyamantri is controlling any particular state, but Prime Minister controls everything, all the states. So similarly, when we do in कर्मकांडा section, just like ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक पेड़ में बहुत सारी टहनियां होती हैं और बहुत सारे पत्ते होते हैं,
तो टहनियों और पत्तों को पोषण देना है, if we want to feed them, you know, if we simply put the water in the roots, all the twigs, पूरी टहनियों को और पूरे पत्तों को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो सारी चीज के मूल जड़ है। तो अगर हम उनको अगर हम पूजा करते हैं या उनको हम सबको समर्पित करते हैं, तो सारे लोगों को प्राप्त हो जाता है, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर प्रधानमंत्री से आपकी मित्रता हो जाए, तो आपको क्या और लोगों से मित्रता करने की अलग से आवश्यकता है क्या? उसी तरह से गणेश, दुर्गा, ये सारे देवी देवता हैं। तो देवी देवताओं की पूजा जैसे क्रमिक रूप से, जैसे एक होता है लिफ्ट और एक होती है सीढ़ियां। तो देवी देवता की पूजा करना, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो देवी देवता भी की पूजा करते हैं, वो भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से। अपरोक्ष रूप से। तो अगर अपरोक्ष रूप से पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अगर हम सीधा उनकी पूजा कर दे, जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, तो हम एक डायरेक्ट ट्रेन पकड़े जो सीधा दिल्ली जाती है, रादर देन ऐसा ट्रेन ना पकड़े कि एक जो जाए लखनऊ, फिर लखनऊ में स्टॉप ओवर लेकर लखनऊ से फिर दिल्ली जाए। तो ऐसा करने की आवश्यकता है क्या है? तो इसको ऐसे सीढ़ी समझ सकते हैं। तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो इस तरह से समझे कि वो लोग सीढ़ियों पे हैं, और जैसे एक पहले पहले मंजिल से 10वें मंजिल पर, तल पर पहुंचना हो, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, एक फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे। तो उसी तरह से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण में अलग अलग देवी देवता हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देवी देवता को एक एक करते हुए आप देवी देवता, मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, तो हनुमान जी क्या करेंगे? अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे, तो आपको क्या करेंगे? वो किसके सेवा में लगाएंगे? वो आपको भगवान राम की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि वो खुद सेवा नहीं लेंगे, वो आपको बोलेंगे चलो राम की सेवा में लगिए। अगर कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, तो दुर्गा जी को बहुत प्रसन्न कर लेगा, तो दुर्गा जी क्या करेंगे? उसे उसे वो विष्णु कृष्ण की पूजा में लगाएंगी। तो अल्टीमेटली हमें किसकी पूजा करनी है? भगवान की पूजा करनी है। तो हम बीच बीच में ना जा करके अगर हम डायरेक्ट लिफ्ट में सीधा ही अगर हम भगवान के पास जाएं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है। तो सीधा अगर कैसे आपको जाए? सीधा मतलब कैसे जाए? मतलब सीधा आपने कहा भगवान के पास, तो सीधा मतलब डायरेक्ट क्या है? मतलब ये डायरेक्ट भी भगवान की पूजा बताइए। कर जाएंगे। हाँ, तो डायरेक्ट यही है ना, हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उसको समर्पित कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हो गया ना। आपको देवी देवता की करने की जरूरत नहीं, खाली उनके करिए। हाँ, कृष्ण जी भी तो विष्णु जी के अवतार हैं, राम जी भी हाँ? विष्णु जी के अवतार हैं। क्या 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 कह रहे हैं? कृष्ण भगवान और राम जी भी तो विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु क्या होता है, वही बोला नहीं नहीं, प्रभु ने। वही तो मैं, प्रभु, हाँ, फिर वही थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है ना। तो कृष्ण जो है विष्णु के अवतार नहीं है। तो तो मानव इसके लिए अवतारों में से नहीं मानव नहीं रूप नहीं में तो हमने देखा था इनको। नहीं नहीं नहीं, तो वही इसलिए शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है ना। ठीक बताइए है। आप। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में इसको बताया गया है कि ये जो सारे जो अवतार हैं, चाहे वो नरसिंह हो गए, राम हो गए, और भगवान के अवतार। वराह हो गए, ये सारे जो हैं वो भगवान के एक्सपेंशन है। लेकिन भागवतम में कहा एता चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो ये सारे जो है कलाएं हैं, एक्सपेंशन हैं, लेकिन कृष्ण ही जो है उस एक्सपेंशन के स्रोत हैं। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, यानी सुप्रीम पावर है। मतलब जैसे मैंने समझाया कि कोई जो है वो क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जो है, उसके बहुत सारे एक्सपेंशन है, बहुत सारी कलाएं हैं। वो कभी शहंशाह बन जाता है, तो कभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बन जाता है, कभी वो जय वीरू बन जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। किसी को बड़े मियाँ छोटे मियाँ अच्छे लग सकते हैं, कोई को शहंशाह अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका भी एक इंडिविजुअलिटी है। तो उसी तरह से भगवान अपना विस्तार करते हैं अलग अलग, लेकिन भगवान की स्वयं भी इंडिविजुअलिटी है। तो अगर कोई शहंशाह को रिवर कर रहा है, तो अल्टीमेटली अमिताभ को रिवर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अमिताभ को डायरेक्ट रिवर करे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा जिसका भाव है, भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरम भावम तजतांत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो सारे जो भाव हैं, उस भाव में जो भी जिसका भाव है स्वभाव, भगवान उसके साथ वैसा संबंध करते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए जो देवी देवता होते हैं, वो भी भगवान के एक्सपेंशन ही है। जैसे हम सारे जीव भगवान के एक्सपेंशन है, वैसे देवी देवता भी एक्सपेंशन है। और ये भी बता रहा हूँ कि देवी देवता जो होते हैं वो जैसे जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान नहीं है, ये तीन जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अधिष्ठाता देव है, उसके कंट्रोलर है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कंट्रोलर है। तो शिव जी जो है वो तमोगुण के कंट्रोलर है, रजोगुण के कंट्रोलर ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु जो हैं वो सत्वगुण के कंट्रोलर हैं। ठीक है।
लेकिन ये भगवान नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेंशन है, ठीक है, विस्तार है। और रही बात मानव रूप में आने की, तो भगवान कभी मानव शरीर धारण ही नहीं करते। भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कहते हैं जो अब जानन्ति मां मूढ़ा, तो जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो मुझे क्या बोलते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। अब जानन्ति मानुषम तनुमाश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। बल्कि वो ये भूल जाते हैं कि मैं परम, इस पूरे जगत का, इस ब्रह्मांड का मैं एकमात्र स्वामी। ठीक है, तो अज्ञानतावश हम देखते हैं कि राम जी आए हैं, या ये सब पास्ट टाइम्स लीलाएं हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं राम जी देखिए हैंडपेक्ड थे, जुरू के गुलाम थे, जब वो सुप्रीम भगवान है तो फिर वो क्यों ऐसे रो रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं अरे मेरी सीते कहाँ गई, हिरण से पूछ रहे हैं मेरी सीते कहाँ पे गई, देखो ये कैसे भगवान है। सो ये भगवान की लीला होती है। अब जैसे अमिताभ जो है इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, भिखारी की एक्टिंग कर रहा है, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, तो क्या बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति है? नहीं, वो एक्टिंग कर रहा है। वो जो रोल है उसमें उसको एक्टिंग कर रहा है और इतना अच्छे से निभा रहा है कि हमें लगता है कि अमिताभ पहले बचपन से ही वो जो बूट पॉलिश करता है। नहीं, वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। और इस एक्टिंग को सब लोग नहीं, अगर उस चीज को लेकर हम बोले अरे ये तो भिखारी है, वास्तविकता में भिखारी है क्या? रियलिटी होनी ही इज एक्टिंग। और ये भगवान ये पास्ट टाइम क्यों करते हैं? ये पास्ट टाइम इसलिए करते हैं कि हमारा जो अट्रैक्शन हो, हम जो है उनकी लीलाओं का गुणगान बखान करें, उनके प्रति अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो भगवान ये जो एक्टिंग करते हैं, और फिर जिसको जो भाव समझ में आता है उस भाव से भगवान की पूजा करता है और फिर उस भाव को प्राप्त होता है, ठीक है। तो भगवान कभी मनुष्य का शरीर नहीं धारण करते हैं। फिर जब भगवान इस तरह से लीला कर रहे थे कि सीता किधर है, सीता किधर है, तो शिव जी और पार्वती जी इस लीला को देख रहे थे उधर बैठ के। तो पार्वती जी को बहुत संशय हो गया, तो उन्होंने पूछा आप बहुत नाम जप करते, किसका नाम लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो, अब मेरे अधिष्ठाता जी तो रामचंद्र जी हैं। तो बोले ठीक है रामचंद्र जी हैं, लेकिन देख रहे हैं ना आप क्या चल रहा है उधर? तो बोले हाँ देख रहा हूँ। तो बोले क्या देखो, अगर आपके ये राम जो है ये आपके अधिष्ठाता देव हैं और आपसे ही बड़े हैं, भगवान हैं, तो फिर ये इनको तो सब मालूम है, तो फिर पत्ते से क्यों पूछ रहे सीता किधर है? पत्ता बताएगा कि सीता किधर है? पत्ता कभी बोलता है? या हिरण को पूछे हम लोग, बताओ मेरा सामान गोद चोरी हो गया, तुमने देखा क्या? हिरण बोलेगी क्या? तो इतना तो इन्हें कॉमन सेंस होना चाहिए ना। पत्तों से क्यों पूछ रहे हैं, लताओ पताओं से क्यों पूछ रहे हैं? तो भगवान नहीं है, ये ये कोई प्रिटेंडर है। तो शिव जी कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र करो, ऐसा मत कहो, भगवान है और ये लीला कर रहे हैं, पास टाइम्स कर रहे हैं, जैसे भक्तों को आनंद मिले। तो बोले क्या पास टाइम? हाँ नहीं, मैं इनका टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो शिव जी ने मना किया, कृपया मत जाओ टेस्ट लेने के लिए, भगवान है। तो बोलती नहीं मैं टेस्ट लूंगी। तो भगवान का टेस्ट लेने के लिए पहुंच गई। तो क्या किया पार्वती जी ने सीता का शरीर धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया, उनकी तरह ही बन गई, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो सीता। एंड भगवान के समक्ष गई, रामचंद्र जी के समक्ष जंगल में गई। तो अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको लगता है यार मेरी पत्नी आ गई है। लेकिन जैसे उन्होंने इस पार्वती जी को देखा, उन्होंने क्या बोला, अरे माते आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, जंगलों में क्या कर रही हैं? और शिव जी किधर है? कौन कहाँ पे है? शिव जी कहाँ पे है? तो वो शर्म से पानी पानी हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और वो दिन था कि शिव जी ने उनको त्याग दिया, पार्वती को। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी ने आपको माता कहा है, तो आप अगर मेरे स्वामी की माता हैं तो मैं आपको कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? अपनी माँ को कोई स्पर्श कर सकता है क्या? मतलब उस सेंस में। तो इसलिए इसलिए मतलब ये समझ में आ रहा है आपको विशाल प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रहा है बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। तो इसके लिए ना थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे ना, शास्त्र को पढ़ते हैं ना, तब जाके चीजें क्लियर होती है। क्या होती है टीवी में जो दिखाया जाता है, अब जैसे टीवियों में जो है नारद मुनि को एज अ क्लाउन दिखाया जाता है। अगर ये सीरियल देखें तो नारद मुनि को क्या दिखाया जाता है कि वो जोकर की तरह है। सही है नहीं? हम तो पुराने देखा, हमने तो जो पुरानी रामानंद सागर जी ने बनाई है ना, आपकी तो देखते हाँ ही नहीं हम। हाँ, नहीं नहीं, उसमें देखते हैं कि नारद जी जो है वो घर घर फोड़ने का काम करते हैं और वो हाँ चुगली बराबर। करते हैं इधर उधर जा करके, तंबूरा लेके इधर उधर ऐसे ऐसे बातें करते हैं। लेकिन नारद मुनि जो है वो बहुत बड़े डिवोटी हैं, और वो ऑलवेज वो भगवान की चेतना में रहते हैं। ब्रह्मा और जी के कभी भी मानस ऐसे, पुत्र हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के तो मानस कभी, पुत्र हैं।
बिल्कुल। तो कभी भी वो इस तरह की चुगली फुगली ये सब जो दिखाते हैं वैसा कार्य नहीं करते। लेकिन टीवी में क्या है ना, मसाला देना होता है उनको, ठीक है। तो मसाला डालने के लिए वो कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करते हैं और आजकल की लोगों को हाँ आजकल की नई जनरेशन को मतलब उस तरीके से नहीं समझ आ रहा जिस तरीके से हमने समझा। जी। उनको तो तो इस एक तरह से नई नई सोच बन रही है अलग ही। करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से वो क्या है ना, उनको शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं है, तो फिर वो किसी को, आजकल तो लोग किसी को ही भगवान बना देते हैं, ठीक है, ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसा भगवान है, वैसा भगवान है। बल्कि शास्त्र तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, भगवान एक ही भगवान है, बाकी तो सब देवी देवता हैं और सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप देखिए भारत में स्थिति है, भारत एक चीज के लिए बहुत मशहूर है, क्या? अवतार, अवतार प्रकट करने में। अभी नवरात्रि आने वाली है, अब देखिए हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई अवतार प्रकट हो जाएगा, ठीक है। और तो और भारत में जीवित भगवान भी बहुत सारे हैं। एक हमारे यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है सुल्तानपुर, वहां पे एक कल्कि भगवान है। अब सोचिए कल्कि भगवान जो है चश्मा लगाते हैं, ठीक है। भगवान को अब उनकी आंखों से नहीं दिखा रहा है, उनको चश्मा से दिखाई देगा। और भगवान बीमार हो जाते हैं तो उनको खुद नहीं ठीक हो पाते, उनको पैरासिटामोल बाहर का लेना पड़ता है। और भगवान का जो है सर का बाल जो है झड़ चुका है, टकले हो गए हैं भगवान, अपने सर का बाल नहीं उगा पा रहे हैं। अब भगवान है वो, पेट में दर्द हो रहा है तो उनको को डोलो 650 खाना पड़ रहा है, और भगवान है। तो ये नितांत इतनी मूर्खता लोग क्यों करते हैं, स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते ना। इसके लिए लोग जो है हीन भावना से ग्रसित होते हैं, अरे 33 करोड़ देव भगवान है तुम्हारे पास, तुम बताओ तुमको क्या है? अरे शास्त्रों को पढ़ो, भगवान एक ही है, बाकी सब देवी देवता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है। और तो और सम्यक रूप से अगर आप देखें तो सनातन वैदिक परंपरा में सबको अकोमोडेट करने का प्रयास, सबको अकोमोडेट किया गया है। हम कभी नहीं बोलते कि एक ही तरीका सब कुछ है। तो अगर जो परम सत्य है उसकी अनुभूति 3 तरह से की जा सकती है, जो भगवान है उसको आप 3 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये वदंती तत्व विदस तत्व यद ज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो परम सत्य को आप ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म ज्योति, अगर आप देखिए कई लोग जो बोलते हैं निराकार है, जैसे इस्लाम में लोग बोलते हैं कि जो परम सत्य है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, बिल्कुल है, शास्त्रों में पहले ही लिखा है कि परम सत्य जो है वो, उसको हम देख नहीं सकते, वो निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ क्या है, उसको कोई गुण ऐसा नहीं है, वो यूजलेस है। निर्गुण का अर्थ है उसको कोई भौतिक गुण नहीं है। तो शास्त्रों में पहले ही लिखा है कि हाँ निराकार गुरु, निराकार जो बोलते हैं निराकार, उनको कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो निराकार ब्रह्म की बात ही की गई है, तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो निराकार ब्रह्म की पूजा करे, ठीक है। फिर दूसरा स्तर है परमात्मा, यानी रिसाइडिंग इन द हार्ट, परमात्मा जो हमारे हृदय में निवास करता है। तो जी बिल्कुल, भगवान कहते हैं सर्वस्व शाम हृदय सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रामेर्वेदो वेदांत कृत विदेव चाम। तो सारे सारे जीवों के हृदय में कौन? मैं परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, कहाँ पे? हृदय के पास। तो वहां पे भगवान जो परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं, और सारे हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है? हम लोग बोलते हैं ना कोई साक्षी नहीं है, परमात्मा हमारे सबसे बड़े साक्षी है। विटनेस जो है ना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं, जैसे जो विटनेस क्या है, तो कर्म के सिद्धांत को मानते ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका कौन विटनेस है? परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं ना, वो हमारे सबसे बड़ा विटनेस है। कोई हमें देखे ना देखे, चार दीवारी में हम क्या कांड कर रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में जो है ना, वो हमारे सारे कांडों को नोट डाउन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद परम सत्य की अनुभूति भगवान के रूप में की जा सकती है। ये कंसेप्शन ही किसी भी स्क्रिप्चर में आप देख लीजिए, किसी भी तथाकथित जो सो कॉल्ड रिलीजियस सिस्टम है उसमें देख लीजिए, कहीं ये कंसेप्शन ही नहीं है कि भगवान को लोग मार भी सकते हैं, उनको उठा के पटक सकते हैं, उनको जो है, उनको उनके माता पिता उनको छड़ी दिखा रहे हैं, उनके माता पिता जो है जूता उठाने के लिए कह रहे हैं, और उनके दोस्त जो है उनके कंधे पे घूम रहे हैं। कहीं बता दीजिए, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए वही दायरा है। भगवान को वो ऐसे देखते हैं कि भगवान जो है वो प्रिंसिपल है, टीचर है, और जो सिर्फ दंड देने के लिए बैठा है। भगवान यहाँ पे दंड देने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर जीवों के साथ आदान प्रदान करने के लिए बैठे हैं। तो जैसा जिसका भाव है वैसा भगवान उसको, और इनफैक्ट बाकी अगर आप तथाकथित उसको देखेंगे तो नास्तिकों के लिए कोई जगह ही नहीं है। नास्तिक मतलब किल देम, इफ समबडी इज इनफिडेल, अगर आपको नहीं मान रहा है वो नास्तिक है, उसको मार दो, वो जहन्नुम में जाने का अधिकारी है, और वो ही विल गो इन हेल, इस तरह की बातें की जाती है। बट इफ यू सनातन वैदिक परंपरा, हियर इवन नास्तिक और आल्सो रिवर्ट, देयर इज नास्तिक फिलोसफर्स एज वेल। चारों को हु और चारों मुनि यही बोलते हैं, यावर जीवे सुखम जीवे तृणम गीत्वा गीतम पिबे देह से भस्मीभूतस्य पुनरागमन कुटो। यार जब तक जीना है ना, ऐश के साथ जियो। दारू शराब पीना है, ऐश करना है, तो घी, घी जो है ना, अगर घी में ही सब बना हुआ खाओ, और पैसे नहीं है तो कर्जे लेके ऐश करो। क्यों? किसको पता
कि अगला जन्म होता है या नहीं होता। अगर ऐसी बातें हम कर दें, नास्तिकवाद की बातें कर दें, तो हम तो मारे जाने के योग्य हैं, लेकिन कहीं नहीं कहा है मार दो इनको नास्तिकों को। ठीक है, तो जो सनातन वैदिक परंपरा है उसमें सबको अकोमोडेट किया गया है, और ये फुल नॉलेज है। तो एक होता है ना, एक पॉकेट डिक्शनरी होता है और एक होता है मेन डिक्शनरी। तो पॉकेट डिक्शनरी में शब्द होते हैं, वो भी डिक्शनरी होती है, लेकिन क्या पूरे शब्द पूरे डिक्शनरी होते हैं क्या? पूरे पूरे शब्द होते हैं क्या? नहीं, उसमें सिलेक्टिव शब्द होंगे, लेकिन जो मेन डिक्शनरी होती है उसमें सारे शब्द होते सारे हैं। होंगे। उसी तरह से हमारी जो जो सनातन परंपरा है उसमें सभी चीजों का समावेश है, सम्यक ज्ञान है। आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ तर्क भावना नहीं है, सारी चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और अलग अलग स्तर पर तो ज्ञान क्या है ना, हम क्या करते हैं, एक ही चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, वो है वर्ण को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जैसे अभी आजकल बोल रहे हैं कि ये जाति परंपरा को बढ़ावा देता है। एक्चुअली शास्त्र कभी जाति परंपरा के बारे में बात ही नहीं करता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वर्ण व्यवस्था की बात होती है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम वर्ण गुण कर्म विभागशः। तो 4 वर्ण है, वो किसके आधार पर है? गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर तभी बनता है जब डॉक्टर के परीक्षा को पास करता है। सिर्फ वो डॉक्टर का लड़का है, वो डॉक्टर नहीं बन जाता। मान लीजिए आपके पेट में दर्द, आपको सर, भगवान ना करे किसी को सर्जरी करानी है, मान लीजिए उसके लीवर में प्रॉब्लम है, उसको लीवर में सर्जरी चाहिए, और गया अस्पताल में, और अस्पताल में गया, पता चला डॉक्टर साहब नहीं है। तो वो थोड़ी बोलता है कि डॉक्टर साहब के लड़के को बुलाइए, वो इसको बोले मेरा ऑपरेशन कर दे। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण विश्व के सभी जगह हैं। बाइफर्केशन सभी जगह है। हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, ये भगवान ने ही वर्ण व्यवस्था बना रखी है। ये सब जगह है, लेकिन किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मण के कुछ गुण हैं, तो ब्राह्मण का क्या गुण है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिघाती। तो पढ़ेगा पढ़ाएगा, दान दान लेगा दान देगा, यज्ञ करेगा, और समाज का नीति निर्धारण करेगा, समाज को शिक्षाएं देगा। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया है। और ये गुण जिसके पास होंगे ब्राह्मण होगा। सरनेम ब्राह्मण नहीं है तो जो गुण होंगे। तो इसी तरह से पाश्चात्य जगत में क्या बोलते हैं, इनको एजुकेशनिस्ट बोलते हैं, शिक्षाविद बोलते हैं। तो शिक्षाविद क्या करते हैं? थिंकर्स क्या करते हैं? नीति निर्धारण करते हैं, समाज को दिशा देते हैं। तो ये थिंकर्स हो गए, इनको हम यहाँ क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अब आ जाइए क्षत्रिय पे। क्षत्रिय का गुण क्या है? क्षत्रिय का गुण है शौर्य। ठीक है, वो दूसरे की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, पॉलिसीज बनाता है, गवर्नमेंट कर रूल करता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है वर्तमान समय में? ऐसे लोगों को हम पॉलिटिशियंस कहते हैं, पावर सेंटर्स कहते हैं, जो कि रूल करते हैं, लोगों का संरक्षण करते हैं, लोगों के लिए पॉलिसियां बनाते हैं। फिर तीसरा कैटेगरी आ जाता है व्यापार का। तो व्यापारियों के बारे में क्या? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। तो जो व्यापार करता है वो क्या है? वैश्य है। वैश्य कर्म स्वभावजन, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो जो खेती करता है, गोरक्षा करता है और व्यापार करता है, वो क्या है? व्यापारी है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन वाले ग्रुप के लोग हैं। और फिर शूद्र, हु आर शूद्रस, हु डू चाकरी, जो दूसरे के यहाँ पे नौकर करता है वो शूद्र होता है। और कलयुग में हम सारे लोग शूद्र ही, कलो शूद्र संभव। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लू कलर वर्कर्स या स्टाफ या रिसोर्स। हम चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे डीएम हो, पीएम हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, हम है क्या? रिसोर्स है ना, रिसोर्स ही है ना, हाँ या ना? राइट राइट राइट। हाँ, तो हम क्या है? शूद्र है। तो शूद्र कोई जाति नहीं है, तो इसको यहाँ पे ब्लू कलर वर्कर बोल दिया, व्हाइट कॉलर वर्कर बोल दीजिए, है तो वर्कर ही। यस यस। तो इस तरह से ये 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है, कहीं पे भी जाति का नाम नहीं लिया है, गुण और कर्म की बात की गई है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसके अंदर सत्यता है, ओजस है, तपस्या है, तो ब्राह्मण कहलाएगा। वो सरनेम नहीं है, पांडे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, शर्मा, ये ब्राह्मण हो गए, सरनेम नहीं है, गुण और कर्म है। अब कोई उसको परवर्टेड फॉर्म में अलग तरह के यूज करे तो शास्त्रों की गलती है क्या? तो जब कोई बोलता है ब्राह्मण, तो लोगों को क्या लगता है? ब्राह्मण बोल रहा है मतलब सरनेम के बारे में बात कर रहा है। अरे भैया, गुण और कर्म के बारे में बात कर रहा है, शास्त्र उठा के पढ़ो। तो अगर कोई इसको विकृत कर दे तो ये शास्त्रों की थोड़ी गलती है। जैसे कि मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि संस्कृत में एक ही शब्द का कई अर्थ होता है। ठीक है, तो एक शब्द होता है सैंधव। तो सैंधवा का अर्थ होता है सॉल्ट, और सैंधवा का अर्थ होता है घोड़ा।
अब मान लीजिए रेफरेंस आता है, शास्त्रों में लिखा है कि हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग ये मैजिकल माइंडसेट ग्रुप वालों जो है वो लोग सब एक रूम में बैठे, डाइनिंग हॉल में बैठे, और डाइनिंग हॉल में बैठकर सब लोगों ने बोला सैंधवा लेके आओ। तो जिस गधे को सैंधवा अगर सिर्फ घोड़ा पता रहे, वो क्या बोलेगा, वो क्या लिखेगा कि मैजिकल माइंडसेट वाले पब्लिक ने, सब लोग ने डिनर टेबल पे बैठे, भक्त लोग सारे लोग, और उन्होंने घोड़ा मंगाया। डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई घोड़ा मंगाएगा क्या? प्रभु 6:50 हो गया। हाँ ठीक है, चलेगा। मेरा पॉइंट जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि क्या ये क्या मंगाएगा? सॉल्ट मंगाएगा ना, समझ में आया। सॉल्ट मंगाएगा ना। हाँ, तो लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन किसका है? शास्त्र का प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को बातें? सबको क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ या नहीं? क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको कहीं सिखाई नहीं जाएंगी ना बताई जाएंगी, आपको सिर्फ सतही तौर पे कुछ चीजें मालूम होंगी, और उसके हिसाब से आपका जो है एक मंतव्य होगा। आपको इस तरह से दिखाया जाएगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मनुवाद, ये बात, ऐसा बात, वैसा बात, ऐसा कुछ है ही नहीं। राइट, सही बात है। ठीक है, हाँ जी, स्पष्ट है सबको? हाँ जी। हाँ जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी, ये जो अवतार पुरुष जो होते हैं, देखिए उनको मालूम रहता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट दे आर अवेयर दैट दे आर अवतार पुरुष है, दे आर अवतार्स? Yeah, they have all the qualities. Okay, so they are avatar purushas. They are see, Aware. Yeah, they are already aware of everything. It's not that they will come out of the blue. Okay, Lord empowers. They will come in. I mean, they are there to fulfill some. अभी कोई पुलिस ऑफिसर के रोल में आया है तो he will know ना वो पुलिस ऑफिसर है, वो चौकीदार की तरह तो काम नहीं करेगा ना। That is understood. राइट जी। लेकिन देखिए उसको मालूम रहता है ना, देखिए ही इज अ पुलिस ऑफिसर, हाँ भाई मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मोहन प्रभु, मेरा शादी का दूसरा प्रोग्राम है सर, प्लीज नेक्स्ट टाइम, कल होमवर्क को करेंगे अपन। ओके, अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो 6:53 हो गए, तो कोई जप कर ले, हम लोग जप कर लेते हैं और फिर ये आप ही कर लीजिए, आज फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर सेशन, आई मीन टुडेस क्वेश्चन वाज वेरी, आज का जो प्रश्न वो था, आज का जो सत्र था, एनीवेज बहुत अच्छा था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिलेवेंट प्रश्न पूछे। होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं ही जब कर लेता हूँ, आप लोग अपने अपने साइड से जब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव सारी गौर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे भगवद कृष्णा। गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।